Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will start a very interesting chapter, algebraic expression. In class 8, we have already learned about addition and subtraction of algebraic expression. In this chapter, we will study the multiplication, division and factorization of algebraic expression. देखिए हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस रिकॉल सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. Polynomials and algebraic expressions in which involves variables have only positive exponents is called a polynomial. And there are various types of polynomials. Okay. A. Algebraic expression having one term are called monomials. For example, आप देख सकते हैं इनमें one term है, so these are monomials. B. Algebraic expressions having two terms are called binomials. Example, see, these are the two terms. 3. Algebraic expressions having three terms are called trinomials. Three terms होंगी तो trinomials. जैसे आप इसमें देख सकते हैं 1, 2, 3 terms. 1, 2, 3 terms. And D. Algebraic expressions having one or more terms are called polynomials. In a polynomials, power of x is a non-negative integer. और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो power होगी x की वो non-negative integer होगी. In polynomials, the variables cannot have negative or fractional exponents for any terms. Okay, so examples of polynomials are these. इनमें ना तो negative आपकी power हो सकती है ना ही fractional. Okay. Expression of the type 6xy plus 9 by x square is not a polynomial. Okay, this is not a polynomial because in 9 by x square, that is 9x raised to the power minus 2. So the power x की आ गई minus 2, which is negative and which is not a whole number. So this is not a polynomial. Okay, now degree of a polynomial. The highest power of a variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. जो highest power होती है variable की उसे कहा जाता है degree of the polynomial. Okay, for example, अगर हम degree of इसकी polynomial की बात करेंगे, so highest degree आप यहाँ पे देख सकते हैं is 2. Highest power 2 है ना, so degree is 2. And degree of this polynomial यहाँ पे देखिए बच्चों highest power क्या है आपकी. See, highest power देखेंगे हम इसे ऐड करेंगे x एंड y. x की पावर 3, y की पावर 3. सो 3 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 6. सो डिग्री इज 6. ओके. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स. For multiplication of monomials, we multiply constants as we multiply rational numbers and multiply the same variable by using the law of exponents. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, बहुत सिंपल है मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना. 4x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करना है माइनस 6xy स्क्वायर से. ओके, अब देखिए माइनस रखेंगे 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, फिर x स्क्वायर इंटू x देन y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 24. x की पावर देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी 2 + 1, x raised to the power 3 and y raised to the power 3. Okay, so similarly you will do this example also. Okay. Next, example 2, multiply and find the value of product for x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to minus 2. तो चलिए पहले हम multiply कर लेते हैं. 1 by 3 x raised to the power 5, y raised to the power 4, z raised to the power 3. इसे मल्टीप्लाई करना है. माइनस 6 by 7 x raised to the power 2, z raised to the power 2. Okay, so numbers 1 by 3 माइनस अब बाहर ले लेते हैं इंटू 6 by 7. Okay, then y raised to the power x raised to the power 5 into x raised to the power 2. Okay, and y raised to the power 4 into z raised to the power 3 into z raised to the power 2. Okay, अब आपका ये जाएगा देखिए ये 3 से कट हो जाएगा 2. So minus 2 by 7 x raised to the power 7, y raised to the power 4, z raised to the power 5. अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप values को पुट करेंगे. Okay, minus 2 by 7, x की value is 1, so 1 raised to the power 7,
2 की वैल्यू है, y की वैल्यू इज 2, 2 रेज टू द पावर 4 एंड z की वैल्यू है -2, सो -2 रेज टू द पावर 5. ओके, -2/7, 1 रेज टू द पावर 7, 1 ही होगा. 2 रेज टू द पावर 4 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. एंड यहाँ पे एक और आपकी पावर आ गई 4 के बाद 5. देखिए 2 रेज टू द पावर 4 आया 16, अब ये 5 है आपका, तो 16 इंटू 2 इज 32, बट माइनस का 32. ओके, अब देखिए आपके पास 1 2 आपके इवन नंबर्स में आपके क्या हो गए हैं, नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 1024/7. ओके, और आप चाहें तो इसे मिक्स्ड नंबर में भी निकाल सकते हैं. ओके, similarly you will do B part also, and here exercise is given 10.1, do it yourself. Okay, now multiplication of a monomial and a binomial. To multiply a binomial by a monomial or vice versa, we use the distributive property of multiplication. That is, distributive properties आप वाकिफ होंगे. A into B plus C is equals to A into B plus B into C. Distributive property है over addition. Similarly, B plus C into A is equals to B. A को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, A को फिर C से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं. So we have to multiply 7/4 x² and 8/28 x minus 3y. ओके, सो देखिए बच्चों, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -3y से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 7/4 x² इंटू 8x/28 एंड बीच नाउ यहाँ पे साइन है तो माइनस का माइनस लगाएंगे, फिर 7x²/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से. ओके, अब देखिए बच्चों, इनको हम कट कर देंगे. 7 4s are 28, 4 2s are 8, 2 2s are 4. So x raised to the power 3/2 minus 7 3s are 21, x raised to the power 2y/4. Okay, so this is your answer. Okay student, so similarly you will do B part also. Okay, exercise 10.2 is given over here, do it yourself. Now let's learn multiplication of binomials and trinomials. To multiply a binomial by trinomial or vice versa, we use the following property. What is this property? A plus B into C plus D plus E, ये binomial है और ये trinomial है, is equals to A into C. देखिए पहले A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को E से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देन प्लस फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को D से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B को E से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. 6x plus 3y एंड मल्टीप्लाई करना है 5x minus 6y. ओके, नाउ हैव अ लुक. सी, पहले 6x से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 6x से हम को मल्टीप्लाई करेंगे 5x minus 6y से. अब हम फिर हम देखिए किससे करेंगे, 3y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3y इन ब्रैकेट 5x minus 6y. ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं. 6 5s are 30 x² minus 6 6s are 36 xy. 3 5s are 15 xy. 15 xy and minus 3 6 are 18 y square. ओके बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, xy xy. सो 30 x² माइनस प्लस माइनस 36 में से हम 15 माइनस करेंगे, माइनस का 21 xy आएगा एंड माइनस 18 y स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू एग्जाम्पल 2 ऑल्सो एंड टिप्स देखते हैं क्या कहा गया है टिप्स में. द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल
is always a monomials. The product of a monomial and a binomial, monomial और binomial का product is always a binomial, and the product of a monomial and a polynomial is a polynomial. Okay, here exercise 10.3 is given, do it yourself. Now division of a monomial by a monomial. To divide a monomial by another monomial, follow these steps. A. Find the quotient of the numerical coefficients. B. Find the quotient of the variables. And C. Find the product of the results obtained in steps A and B. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमें डिवाइड करना है, देखिए 18x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को किससे करना है बच्चों? 3x y से. ओके, सो पहला क्या बोला गया है? फाइंड द कोशेंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 18 को डिवाइड कीजिए 3 से, यू विल गेट 6. ओके, सो 18 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स वाई से. तो ये आपका 6 आ जाएगा. 6x 2 और ये 1, तो पावर आपकी हो जाएगी 1, y 2 और 1 क्योंकि नेगेटिव में हो जाएगा, तो y and z square. So this is your answer. Okay, tips. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. We know that when the dividend and divisor have the same signs, the quotient has plus sign. Dividend और divisor में same sign होगा, means या तो दोनों negative होंगे या दोनों positive होंगे, तो plus का sign आएगा. And when the dividend and the divisor have the opposite sign, the quotient has a negative sign. ये याद रखिएगा. Okay. Now division of a polynomial by a monomial. To divide a polynomial by a monomial, follow these steps. A. Divide each term of the polynomial by the monomial. B. Add all the quotients to get the result. Okay, तो चलिए इसे भी हम example के through समझते हैं. So how, if we have to divide 24a cube plus 12a square minus 6a को divide करना है 6a से. Okay, क्या बोला गया? डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल. दिस इज द मोनोमियल, तो हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे. 24a क्यूब डिवाइडेड बाय 6a प्लस 12a बाय 6a माइनस 6a बाय 6a. ओके, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल गेट 4 और ये 4a स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर बिकॉज पावर 3 और ये 1 है, डिवाइड में है तो डिवाइड बाय पावर माइनस होती है. प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2a और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो -1. सो दिस इज योर आंसर. है ना कितना सिंपल. ओके, नाउ डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल by a binomial. To divide a polynomial by a binomial, follow these steps. Number 1, arrange the terms of the dividend and divisor in decreasing order of their degrees. So ये पहला स्टेप है कि जो dividend और divisor के जो terms हैं उन्हें decreasing order में करना है उनके degrees के. B, divide the first term of the dividend by the divisor in such a way that first term may be cancelled. और इस तरह से आपने डिवाइड करना है डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर से कि पहली टर्म कैंसिल हो जाए. ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. लेट्स डू एग्जाम्पल 1. ओके, आपको डिवाइड करना है 12x रेज टू द पावर 5 माइनस 56x क्यूब और x रेज टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 60x -18. ओके, अब इसे डिवाइड करना है आपको x रेज टू द पावर 2 माइनस 3 से. ओके, सो बच्चों सबसे पहले हमें पहली टर्म कैंसिल करनी है. सो x स्क्वायर से हम x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12x रेज टू द पावर 5 आए. सो दिस इज 1, तो ऑब्वियसली आप 12 से करेंगे, बट 12x क्यूब. ओके, ये 2 और क्यूब प्लस होके 5 हो जाएगा. ओके, सो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x रेज टू द पावर 5, राइट, एंड -3 को भी तो करना पड़ेगा ना. -3 को 12 से करेंगे -36x रेज टू द पावर 3. ओके, नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसिल. अब 56 माइनस का है, ये प्लस का है, होगा माइनस. ओके, सो 56 में 36 माइनस करेंगे, -20x क्यूब
और अब आप साथ में एक और टर्म को, या आप चाहे तो पूरी टर्म को आप नोट कर लेंगे, प्लस मीन्स यू विल ब्रिंग डाउन प्लस 60x माइनस 18. ओके, अब हमें इस टर्म को कैंसिल करना है. सो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 20 से, बिकॉज हियर माइनस 20 वी हैव. x रेज टू द पावर 2 बट हियर x रेज टू द पावर 3. सो x आप यहाँ पे लगाएंगे. सो आपका आ जाएगा माइनस 20x रेज टू द पावर 3. एंड 3 को करेंगे 20 से, सो आपके पास आएगा 60x. बट क्या आप 60x यहाँ पे लिखेंगे? नो, ये तो x रेज टू द पावर 2 है ना. आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 60x. नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस. ओके, कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया. नाउ ब्रिंग डाउन रिमेनिंग टर्म्स. 6x स्क्वायर माइनस 18. ओके, अब आपको 6x स्क्वायर चाहिए कैंसिल करने के लिए. सो x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 6 से. ओके, 6x स्क्वायर और माइनस 3 से करेंगे 6 को, सो माइनस 18. ओके, नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस. अब ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो गई. सो रिमाइंडर इज 0. सो बच्चों, इस तरह के डिविजन में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, सो बच्चों, आपके पास जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, बार बार करनी है. ओके, नाउ एक्सरसाइज 10.4 is given over here. Do it yourself. And बच्चों, साथ ही साथ आपने इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस करनी है. ओके, in order to make your math strong.